Hello my dear students, good afternoon to all of you. I hope आप सब अच्छे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं. मैंने अब तक 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आप लोगों को समझाया है, दैट इज़ मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस. इन माई दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक नया मेथड समझाऊंगी, दैट इज़ द जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस. ठीक है, सो पहले इसका कैनन या फिर प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं. If 2 or more instances in which the phenomena occurs have only one circumstance in common, while 2 or more instances in which it does not occur have nothing in common save the absence of the circumstances in which alone the 2 sets of instances differ is the effect or the cause or an indispensable part of the cause of the phenomena. So this is the canon or the principle of the joint method of agreement and difference. Okay. Now the process. What is the process? So before going to the process, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ पहले what does the principle means. Okay, principle of the joint method of agreement and difference means. हम लोगों ने देखा मेथड ऑफ एग्रीमेंट में वी हैव टू कलेक्ट हाउ मेनी इंस्टेंस, मैनी इंस्टेंस, राइट. मेथड ऑफ डिफरेंस में वी हैव टू कलेक्ट हाउ मेनी इंस्टेंस, ओनली 2 इंस्टेंस, दैट इज पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव. बट इन जॉइंट मेथड बाय द वेरी नेम, ओके, जॉइंट मेथड, उसमें ही आप लोगों को पता चल रहा होगा दैट दिस इज द मिक्सचर ऑफ मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड मेथड ऑफ डिफरेंस. So in this joint method of agreement and difference, we have to take 2 sets of instances, not 2 instances, but 2 sets of instances. Clear? 1 positive set and 1 negative set. In the similar way, जैसे हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंस में लिया था 1 पॉजिटिव इंस्टेंस एंड 1 नेगेटिव इंस्टेंस, पर जॉइंट मेथड में हम लेंगे 2 सेट्स, 1 पॉजिटिव सेट एंड 1 नेगेटिव सेट. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू अप्लाई दिस मेथड. नाउ सबसे पहला द फर्स्ट प्रोसेस, द मेथड रिक्वायर 2 सेट्स ऑफ इंस्टेंसेस. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, दिस मेथड रिक्वायर 2 सेट्स ऑफ इंस्टेंसेस. In each set there must be 2 or more instances. एक सेट में 2 से ज़्यादा इंस्टेंस होना चाहिए. Okay, one set consists of positive instance and the others consist of negative instance. तो हम लोग 2 sets of instances देंगे जिसमें कम से कम 3 instances होना चाहिए, और जिसमें एक positive instances का set होगा और एक negative instances का set होगा. ठीक है. Now second process, in the set of positive instances in which phenomena under investigation is present, there is only one circumstance in common, and in the set of negative instances in which the phenomena under investigation absent, the common circumstances is absent. So as it is quite similar to method of difference, इन दोनों सेट्स में भी जो पॉजिटिव सेट है उसमें द कॉज विल बी प्रेजेंट, एंड जो नेगेटिव सेट है उसमें द कॉज विल बी एब्सेंट. ओके, जो चीज़ आफ्टर एनालाइजिंग बोथ द सेट्स आप लोग नोटिस करेंगे कि एक सर्कमस्टेंसेस होगा जो पॉजिटिव सेट में प्रेजेंट होगा, और एक होगा वही सर्कमस्टेंसेस नेगेटिव सेट में एब्सेंट होगा. सो जो पॉजिटिव सेट में प्रेजेंट है दैट विल बी द cause of the phenomena. Okay, now let us come to the third one, means third in the process. On the basis of agreement in respect of presence and also in respect of absence, we came to the conclusion that the 2 things are causally connected. Okay, पढ़ लीजिए एक बार. Causally connected. Okay, now in this basis of agreement in respect
ऑफ प्रेजेंस एंड ऑल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ एब्सेंस, मतलब प्रेजेंस जो पॉजिटिव सेट में प्रेजेंट है एंड एब्सेंट जो नेगेटिव सेट में एब्सेंट है, उन दोनों में देयर शुड बी अ कॉजल कनेक्शन. Okay, if we find a causal connection, then that instance which is present in the positive set is a cause of the phenomena. ठीक है, so see this is the symbolic example. Okay, symbolic example में देखिए, ABC is followed by XYZ, ADE is followed by XPQ. ठीक है, and this is the negative set. BDE is followed by YPR, CFG is followed by ZQS. okay, तो X is missing here. इसमें कहीं भी X नहीं है, but इसमें A and X दोनों है. That means A is the cause of X. Okay, so let me explain this with a concrete example. Okay, a man observes several instances in which he eat a particular article of food and suffer from indigestion. From the set of positive instances, according to the method of agreement, he inferred that the eating of that article of food is the cause of the indigestion. He then take a set of negative instances and find that when he does not eat that article of food, he does not get indigestion. In this way, the original conclusion is confirmed. Now let us take one example to make this method, joint method, more clear. Suppose एक आदमी को बहुत दिनों से indigestion का प्रॉब्लम है. ठीक है, he is suffering from indigestion. तो पता लगाने के लिए what is the cause of his indigestion, he applied this joint method of agreement and difference. ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई, मैंने आप लोगों को ये प्रोसेस समझाया था ना. इन द सेम प्रोसेस दैट मैन ऑल्सो अप्लाइड द जॉइंट मेथड. उसने क्या किया, उसने एक पॉजिटिव सेट रखा और एक नेगेटिव सेट रखा, और उन दोनों सेट्स में वो डेली क्या क्या खाता है उसका एनालिसिस किया. सो इन द पॉजिटिव सेट ही कीप 3 इंस्टेंसेस. सपोज पहले इंस्टेंसेस में राइस, व्हीट, मिल्क. दूसरे इंस्टेंसेस में से सलाद, मिल्क. तीसरे इंस्टेंसेस में ब्रेड, मिल्क. ठीक है, और जो नेगेटिव इंस्टेंस है उसमें उसने रखा राइस एंड व्हीट फर्स्ट इंस्टेंसेस में, सेकंड में एग एंड ब्रेड, एंड थर्ड में उसने रखा से सलाद एंड दाल. ओके, तो 2 इंस्टेंसेस हो गया, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव. फिर उसने नोटिस किया जब उसने अपने डाइट में मिल्क को ऐड किया था तब उसको इंडाइजेशन हो रहा था. दैट इज द पॉजिटिव इंस्टेंस. बट इन द नेगेटिव इंस्टेंस जब उसने अपने डाइट से मिल्क को हटा दिया, देयर इज नो मिल्क, एट दैट टाइम उसका इंडाइजेशन ठीक हो गया. दैट मीन्स दैट मिल्क इज द कॉज ऑफ हिज इंडाइजेशन. ठीक है, समझ में आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंस. ओके, मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देती हूँ. आई होप आप सबको क्रिकेट पसंद है, राइट? क्रिकेट बहुत पसंद है, हम सबको पसंद है क्रिकेट. नाउ सपोज हम लोगों ने बहुत सारे से गेम्स देखे जिसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे एज अ कैप्टन. ओके, और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे गेम्स भी देखे जिसमें सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे एज अ कैप्टन. ठीक है, फिर हम लोगों ने एनालाइज किया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेट ऑफ इंस्टेंसेस को लेके. एक साइड में हम लोगों ने वो सेट्स ऑफ इंस्टेंसेस रखा जिसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं एज अ कैप्टन, और एक साइड में नेगेटिव इंस्टेंस में हम लोगों ने वो मैच एनालाइज किए जिसमें सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे एज अ कैप्टन. फ्रॉम दिस वी कम टू द कंक्लूजन दैट जिन गेम्स में सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन खेल रहे थे वो सारे गेम्स इंडिया ने जीत लिया था. इंडिया वन दोज गेम्स.
बट जिनमें सचिन तेंदुलकर नहीं खेल रहे थे, द नेगेटिव सेट, वो सारे गेम्स इंडिया लॉस्ट. From this we conclude that Sachin Tendulkar is the cause of the victory of Indian team. ठीक है, अभी समझ में आया? इट इज़ वेरी सिंपल, द मेथड इज़ वेरी सिंपल. क्या करना है? सिर्फ 2 सेट लेना है ऑफ इंस्टेंसेस. वन इज पॉजिटिव सेट एंड वन इज नेगेटिव सेट. ओके, अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जो पॉजिटिव सेट में है एंड नेगेटिव सेट में नहीं है और उसके वजह से द इफेक्ट इज ऑकरिंग, तो फिर दैट इज द कॉज. जैसे सचिन तेंदुलकर के वजह से इंडिया वॉज विनिंग, दैट्स वाई सचिन तेंदुलकर इज द कॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ इंडिया. और मिल्क के वजह से उस आदमी को इंडाइजेशन हो रहा था, सो ही रिमूव मिल्क, हिज इंडाइजेशन ऑल्सो गेट क्योर्ड. सो मिल्क वॉज द कॉज ऑफ हिज इंडाइजेशन. ओके, अंडरस्टूड प्रॉपरली? ओके, इफ देर इज एनी अदर कंफ्यूजन यू लेट मी नो. Okay, have a nice day all of you.